بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی۔ ملتان میں موسم سرما کے دوران گیس غائب رہنا معمول بن گیا۔ شہر کے بیشتر علاقوں کی طرح محلہ قادر آباد میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم خان کی اس رپورٹ میں۔ شہر اولیاء ملتان میں سوئی گیس کی بندش معمول بن گئی، جس کی وجہ سے شہریوں کو اذیت کا سامنا ہے۔ محلہ قادر آباد کے مکین بھی گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گیس آئے نہ آئے بل ہر ماہ بھرنا پڑتا ہے۔ سردیوں میں اتنی ٹھنڈ نہیں پڑتی، یہ گیس چلا جاتا ہے گھر میں۔ اب ایل پی جی دیکھ لیں 240 روپے کلو ہے، تو صبح ناشتے میں ایل پی جی پوری کریں، بچوں کی روٹی پوری کریں یا گھر کے دوسرے کام پورے کریں۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ پورا مہینہ لکڑیاں اور ایل پی جی خریدنا جیب پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ ایل پی جی خریدنے کے پیسے جب نہ ہوں تو بچے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں۔ آج بھی دیہڑی پہ گیا تھا، واپسی خالی ہٹ کے آ رہا ہوں۔ بچے گھر بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں کام ہے نہیں، دیہڑی دار بندہ کیا کرے۔ گیس آتی نہیں ہے، مہینے کا 5-6 ہزار روپے کا ایل پی جی گیس کا خرچہ ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ہارون رمضان کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان۔ ملتان سمیت پنجاب بھر میں آٹے کا بحران جوں کا توں برقرار، حکومتی دعوے ہوا ہو گئے۔ گندم کی فی من قیمت 4200 روپے تک گر گئی، مگر چکی مالکان اب بھی پہلے والے ریٹس پر ہی آٹا بیچ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے اس رپورٹ میں۔ پنجاب بھر میں آٹے کا بحران جاری، حکومت کے آٹے کی قیمت میں کمی کے دعوے اپنی جگہ، مگر چکی مالکان پہلے والی قیمتوں پر آٹا فروخت کرنے میں مصروف ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ گندم کو بہت دیر سے ریلیز کیا گیا، جس کی وجہ سے آٹے کا بحران پیدا ہوا۔ آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمت کچھ کم ہو سکتی ہے۔ پچھلے ہفتے گندم کا ریٹ بہت زیادہ تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے گندم ریلیز کم کی، اس کے بعد اب انہوں نے زیادہ ریلیز کرنی شروع کر دی ہے۔ اب مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اور ڈاؤن ہو جائے گی، جیسے جیسے وہ ریلیز کرتے جائیں گے اور ڈاؤن ہو جائے گی۔ اب ریٹ 120-130 روپے کلو پر آ جائے گا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح سے آٹے کا بحران کبھی بھی نہیں دیکھا۔ حکومت کی شدید نااہلی کی وجہ سے یہ مسائل شہریوں کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ سرکاری آٹا ملتا ہی نہیں، غریب بندہ کیا کرے۔ 140 روپے کلو مل رہا ہے، پچھلے ہفتے 150 روپے کلو تھا۔ اب حکومت کا کہنا تو یہ ہے کہ بہت جلد اس کا ریٹ جو ہے نا ڈاؤن کیا جائے گا۔ چکی مالکان اور شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹا اور گندم کے ریٹس کم کیے جائیں تاکہ عوام اس طرح سے خوار نہ ہو۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال یونس کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی، رحیم یار خان میں مہنگائی نے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ 1 کلو گھی کی قیمت مزدوروں کی ایک دن کی کمائی کی برابر ہو گئی۔ غریب ہانڈی کو تڑکا کیا لگایا گیا، مہنگائی نے اسے تڑکا لگا دیا۔ عاصم صدیقی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ مہنگائی نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ رحیم یار خان میں اشیاء خریدنے جائیں تو ہر بار نئی قیمت ملتی ہے۔ مہنگائی نے امیر چھوڑا نہ غریب کو، ہر طبقہ پریشان۔ ہانڈی کی شان اور تڑکا لگانے والا گھی بھی مہنگائی کی نظر ہو گیا۔ کراچی برانڈ گھی کی قیمت 50 روپے اضافے کے ساتھ 410 کے مقامی برانڈ کے گھی کی قیمت 20 روپے اضافے کے بعد 480 روپے ہو گئی ہے۔ اب گھی کی قیمت مزدور کی ایک دن کی کمائی کے برابر ہو گئی ہے۔ کام نہیں ہے، بالکل 1 مہینہ آ گیا فارغ ہے سب، یہ جتنے بھی مزدور ہیں اتنے بے تنگ ہے کہ بے حد۔ اور اگر گھیو لینے جائیں، وہ کراچی والا جو آپ بات کر رہے تھے کہ گھیو ہے، وہ ابھی 490 روپے کا ہے، 75 کا نہیں ہے۔ یہ آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا، ہم لینے جائیں ہمارے ساتھ چلے ابھی بھی 490 روپے کا دیتے ہیں۔ بہت پریشانی ہے جی، کھانے کو کچھ نہیں لبتا ہی نہیں، نہ دیہڑی لگتی ہے، نہ کام ملتا ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، کہاں سے جائیں ہم؟ ادھر سے لنگر دیتے ہیں، 2 روٹی ملتے ہیں، بس وہ کھا لیتے ہیں بس۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے کام کروانا چھوڑ دیا، مزدور کئی ماہ سے مزدوری کے لیے ترس گئے۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ اور بلیٹن میں ہم بات کرتے ہیں ملتان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ درزی بھی بجلی کی طویل بندش سے پریشان ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث درزیوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ ملتان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگیاں جیرن کر دیں۔ درزی بھی بجلی کی طویل بندش سے پریشان ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث درزیوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کاریگر کام نہ ہونے کی وجہ سے پریشان دکھائی دینے لگے ہیں۔ 9 بجے کل جو ہے نا، کل بھی ایسے ہوا کہ دوپہر کو 2 بجے لائٹ آئی ہے، تو سارا دن لائٹ نہیں ہوتی، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ گاہک جو ہے نا علیحدہ تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹائم پہ ہمیں کپڑے نہیں دیتے۔ ہم کیا کریں، مجبوری ہے کہ ہم بیٹھے ہیں
लाइट होगी तो काम होगा। दर्जी कहते हैं पहले दिन में 6 से 7 जोड़े सिलाई करने वाले कारीगर अब 2 सूट मुश्किल से बना पाते हैं। ग्राहकों की राह तकते पूरा दिन निकल जाता है। वक्त पर सूट सिलाई ना होने की वजह से कस्टमर्स ने दुकान पर आना छोड़ दिया है। काम करते हैं, वो काम हमारा रुका होता है, बहुत परेशान हुए पड़े हैं। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, रोजगार बहुत, हम 5,000 का 3,000 का अब तक कमाते थे, 2,000 का नहीं कमाते हम, बहुत परेशान है। अब बैठे हैं लाइट के इंतजार में। दर्जियों का कहना था कि काम ना होने की वजह से गुजर औकात करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली की लोड शेडिंग और महंगाई पर काबू पाया जाए। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बात के लिए कमर कसबी अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर उमर फारूक का कहना था कि जिला की 6 कौमी और 13 सूबाई सीटों के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिए गए हैं। इंतखाबात में तारीखी कामयाबियां समेटेंगे। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीम यार खान के जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर उमर फारूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि डॉक्टर अनवारुल हक हल्का NA 172 और PP 262 से फैसल जवेद उम्मीदवार होंगे, जबकि बल्दियाती ग्रुप लीडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सैयद सजाद महमूद को भी नामजद कर दिया गया है। जमात इस्लामी ने जिले के 6 MNA और 13 MPS के उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि जमात इस्लामी के उम्मीदवारान किरदार, दियानत, खिदमत और सलाहियत के एतबार से किसी भी दूसरे उम्मीदवार के मुकाबले में अवाम के लिए बेहतरीन इंतखाब होंगे। हमने ये फैसला किया है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और मैं बल्कि ये बता दूं आपको कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की 6 कौमी असम्बली की सीटों के अंदर 6 कौमी असम्बली की सीटें और 6 की 6 के ऊपर हमारे उम्मीदवार जो हैं हमने नामजद कर दी हैं। 13 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, उसमें से 10 के ऊपर हमने अपने उम्मीदवार नामजद कर दिए हैं, और बाकी 3 सीटों के ऊपर अनकरीब जो है वो भी हम नामजद कर देंगे। इस मौके पर जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अनवारुल हक समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। डॉक्टर उमर फारूक का कहना था कि वो जिले के तमाम मसाइल से बाखूबी आगाह हैं। आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी के बाद अवाम का म्यार जिंदगी बुलंद करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान में पाकिस्तान सेंटर कॉटन कमेटी के मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। मुलाजिमीन की 8 माह से तनख्वाहें और पेंशन न मिलने पर कलम छोड़ हड़ताल। मुलाजिमीन ने PCC की इमारत के दाखिली रास्ते पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने हुकूमत से जल्द तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर मुल्तान में पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन को 8 माह से तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिली, जिस पर उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। मुलाजमीन ने PCC की इमारत के दाखिले रास्ते पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुलाजमीन ने हुकूमत से जल्द तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहरे में मुलाजमीन ने एहतजाजी बैनर्स भी उठा रखे हैं। 7 महीनों से तनख्वाहें और पेंशन 30% दी जा रही हैं, और पिछले 4 सालों से हमें जो वाजबात हैं, जो गवर्नमेंट तनख्वाहें बढ़ाती हैं, वो आज तक हमें नहीं मिली। आप मुझे ये बताएं कि जब रिसर्च के इदारों की ये हालत होगी कि उनके मुलाजमीन को, साइंटिस्ट को आप रोड पे बैठने पे मजबूर कर देंगे, तो फिर रिसर्च कहाँ से होगी। मुजाहिरीन का कहना था कि कई माह से तनख्वाहें न मिलने की वजह से उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो चुका है। वो फाका कशी का शिकार हैं। सिर्फ 30 से 40% तनख्वाहें मिल रही हैं। हमारे मुलाजमीन को पिछले 7 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। इसके अलावा 2017 के बाद हमें बकाया जात अदा नहीं किए गए। आज हमारा एहतजाज का पहला दिन है और पुरअमन है। मैं अरबाब इख्तियारात, हुकूमती वज़रा और मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को यह कहता हूँ कि वो होश के नाखन लें। हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। एहतजाजी मुलाजमीन का मजीद कहना था कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार के नवमुंतखब सदर जाम अब्दुल मजीद लाड़ और जनरल सेक्रेटरी अहमद कांजू ने चार्ज संभाल लिया। जमहूरी रवायात के मुताबिक साबिक सदर और जनरल सेक्रेटरी ने इन्हें वेलकम किया। देखते हैं आसिम सदीक की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान के नवमुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी ने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। जमहूरी रवायत को बरकरार रखते हुए साबिक सदर और जनरल सेक्रेटरी ने नवमुंतखब ओहदेदारान को खुशामदीद कहा और अपनी नशिस्तें पेश करके चार्ज उनके हवाले किया। नवमुंतखब सदर जाम अब्दुल मजीद लाड़ और जनरल सेक्रेटरी अहमद कांजू ने एतमाद का इजहार करने पर वकला का शुक्रिया अदा किया और ब्लैकमेलिंग को खत्म करने के अज़्म का इजहार किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी। जैसे हमारी रवायत चली आ रही है उसके मुताबिक हमें प्रेसिडेंट ऑफिस हमारे हवाले किया और जो सारे मामलात थे वो हमारे सुपुर्द किए। मैं सबसे पहले तमाम बार का मशकूर हूँ
जिन्होंने मुझे खूबसूरत अंदाज से इलेक्ट किया है और अब मैं इंशाल्लाह पूरी बार का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इंशाल्लाह हमारी ये खूबसूरत कैबिनेट मारूज़ वजूद में आई है। हम हर किसी को ऑनर देते हुए आगे चलेंगे और बार की बेटरमेंट के लिए इंशाल्लाह आखिरी हद तक जाएंगे। इलेक्शन जमहूरियत का हुस्न है और वकला का हर प्लेटफॉर्म हमेशा जमहूरियत का अलमबरदार रहा है। जीतने वाले उम्मीदवार सब कुछ बुलाकर सबको साथ लेकर चलने की रवायत पर कायम रहते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। सर्द मौसम में मुल्तान की खास सौगात सोन हलवे की मांग बढ़ गई। शहरी कहते हैं पिस्ता और बादाम का सोन हलवा जायके के एतबार से इंतहाई उम्दा और लजीज है। दानियाल इकबाल की रिपोर्ट में देखते हैं। ठंडे मौसम में मुल्तान की सौगात सोन हलवे की मांग में इजाफा हो गया। शहर औलिया के बासी पिस्ता और बादाम से तैयार सोन हलवे के गुन गाने लगे। दीगर शहरों के लोग भी सोन हलवा खरीदने मुल्तान आते हैं। गाहक का कहना था कि यहाँ का सोन हलवा जायके में बहुत लजीज है। यहाँ का हलवा बहुत मशहूर है। बादाम पाक हम खाने आते हैं और बहुत ही लजीज होता है और इसके साथ का पूरे मुल्तान में और कहीं नहीं मिलता। यहाँ से मुल्तान से सऊदीया, दुबई हमारे गेस्ट वगैरह हैं, उनको हम सर्व करते हैं। तो अभी भी मैं देखो इस टाइम इनका यही लेने आए हैं। रात के लिए हम बहुत शौकीन हैं इन हलवे के लिए। सर्दी के मौसम में सोन हलवे के साथ साथ गाजर के हलवे की भी मांग बढ़ जाती है, मगर काजू, पिस्ता और बादाम से तैयार सोन हलवे की क्या ही बात है। कुछ शहरी हलवे के साथ साथ मिठाई, बर्फी और गुलाब जामुन भी खरीदते नजर आए। दुकानदार का कहना था कि वो देसी घी और खालिस दूध से सोन हलवा तैयार करते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारा सोन हलवा पसंद किया जाता है जो मुल्तान की सौगात है, और ये खालिस देसी घी और दूध में तैयार किया जाता है। इसमें अखरोट भी होते हैं, हमारे पास अखरोट वाला भी सोन हलवा है, ड्राई फ्रूट वाला भी सोन हलवा है, एक प्लेन भी सोन हलवा है, इसमें से बादाम लगे होते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, उसको लेके जाते हैं, पसंद किया जाता है काफ़ी। मुल्तान का सोन हलवा यूं तो पूरा साल ही बिकता है, मगर सर्दियों में गर्मा गर्म सोन हलवा खाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। मियांवाली के मवेशी पाल हज़रात के लिए अच्छी खबर। 10 नई वेटरनरी डिस्पेंसरियां तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल। नई वेटरनरी डिस्पेंसरियों के इजरा से मवेशी पाल हज़रात मुस्तफीद होंगे। अख्तर मजाज की रिपोर्ट में देखते हैं। मियांवाली में 10 नई वेटनरी डिस्पेंसरियां तकमील के आखिरी मराहल में हैं। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक मतीउल इस्लाम ने बताया कि मियांवाली में 1960 में 15 वेटनरी अस्पताल बनाए गए। गुज़श्ता साल एडीपी स्कीम में 10 डिस्पेंसरियां रखी गईं जो अप्रैल में बाकायदा काम शुरू कर देंगी। ये अस्पताल जो 1960 में बने थे, उसके बाद अभी पिछले साल में एक एटीपी स्कीम बनी है जिसके अंदर 10 नए अस्पताल स्टाफ के साथ बन रहे हैं, तो उसमें स्टाफ भी नया आ जाएगा। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब इस एडीपी स्कीम के सिलसिले में काफ़ी मुतहरिक हैं, तो अप्रैल से ये जो नई डिस्पेंसरीज हैं विद फुल स्टाफ, जिसमें वेटरनरी ऑफिसर भी आ जाएंगे और वेटरनरी असिस्टेंट भी, टेक्नीशियन भी, ये स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्टर मतीउल इस्लाम का कहना था कि वो मवेशी पाल हजरात को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने के लिए पुरुमीद हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की हिदायत पर 10 मजीद डिस्पेंसरियों की स्कीम भी बनाई जा रही है। अभी एक एडीपी स्कीम मजीद डिप्टी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा है कि सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर करने के लिए एक एडीपी स्कीम मजीद बना के लाएं और जो आपका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से कितनी डिस्पेंसरीज और बनती हैं, तो इस सिलसिले में हम डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर एक और स्कीम बनाएंगे। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक का मजीद कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद महकमा लाइफ स्टॉक मवेशी पाल हजरात को भरपूर सर्विसेज फराहम कर रहा है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मियांवाली में मारूफ दानिश्वर रिटायर्ड डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद के एजाज में तकरीब। नामवर शाही सलीम शहजाद की खुसूसी शिरकत। मुकर्ररीन ने तनवीर खालिद की शख्सियत और फनी जिंदगी पर रोशनी डाली। अख्तर मजाज की रिपोर्ट में देखते हैं। मियांवाली में नामवर शायर सलीम शहजाद की जेर सदारत मारूफ दानिश्वर रिटायर्ड डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। सलीम शहजाद का कहना था कि तनवीर खालिद का शुमार इल्मी अदबी शख्सियात में होता है। सहाफती जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने अदब के लिए भी भरपूर काम किया है। ऐसी शख्सियत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में मौजूद थी जिन्होंने अपने काम के साथ साथ अदब, लिटरेचर और सहाफत का जो वो काम था उसको उसमें ऐसे ऐसे कारहाय नुमायाँ उन्होंने सर अंजाम दिए कि जिन्हें तादेर याद रखा जाएगा। अगरचे ये अब रिटायर हो चुके हैं, मगर ये हमारे हम शायरों, अदीबों और साफियों के दिलों में बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। मियांवाली के मारूफ शायर नजीर जात का कहना था कि तनवीर खालिद की अदबी और सहाफती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। और इन्होंने मियांवाली के लिए बहुत मियांवाली को इन्होंने अपना समझ के यहाँ ये रहे हैं
اور میاں والی کے لوگوں، شاعروں، یہ ادیب جو صحافی ہیں، ان کو سب کو ایسے جوڑ کر رکھا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جب چلے بھی جائیں گے تو وہ لوگ مل کے رہیں گے۔ 14 کتابوں کے مصنف اور شاعر مظہر نیازی نے تنویر خالد کو بڑا ادیب، دانشور اور تنقید نگار قرار دے دیا۔ تنویر خالد صاحب میاں والی کے ادبی ورثے کے امیر رہے ہیں۔ وہ جتنا عرصہ میاں والی میں رہے ہیں، میاں والی کے ادبی تقریبات میں اضافہ ہوا، اور اس کے علاوہ انہوں نے نئے شاعروں کی اور جو بزرگ تھے، جو درمیانی قد کے شاعر تھے، سب کی انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ بڑے وسیع ظرف آدمی تھے۔ ریٹائرڈ ڈائریکٹر انفارمیشن دانشور تنویر خالد کا کہنا تھا کہ وہ خوبصورت تقریب کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میں شکر گزار ہوں میاں والی کے تمام قلم قبیلہ کے دوستوں کا، صحافیوں کا، جنہوں نے مجھے ہمیشہ محبت دی ہے۔ جس سے بھی محبت کریں گے وہ آپ کو محبت ہی دے گا۔ میاں والی کے لوگوں کا یہ خاصہ ہے کہ یہاں پر جو بھی آفیسر آیا ہے یا جو بھی شخص باہر سے آیا ہے، وہ ان کی محبتوں میں جھگڑا کیا ہے۔ میاں والی کے لوگوں کی محبتوں کو میں کبھی بھی نہیں بھلا پاؤں گا۔ تقریب میں ریسکیو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نوید اقبال، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خضر حیات خان، شعراء کرام، صحافیوں اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔